Welcome to True Tales Cinema, the ultimate rendezvous for documentary enthusiasts. My name is Raj and I'll be your host today. So join me as we dive deep into the magical world of documentary filmmaking. Each episode features engaging conversation with directors, producers, and experts who unravel the untold story behind the lens. From groundbreaking discoveries to gripping narratives, True Tale Cinema offers a front row seat to the magical world of documentaries. Get ready to be inspired, informed, and captivated as we unravel the art of storytelling through the lens of reality. So, join me in welcoming our today's guest, who has won a National Film Award for his biographical film called as Vishnupant Damle, Bolpatansa Muknayak, and his upcoming film Disha Swarajyachi. And he's a very calm personality. So join me in welcoming Mr. Virendra Valsanga, sir. Hello, sir. How are you? Hello, I'm fine, thank you. How are you? I'm good. Thank you, sir. Let's start with the title itself, Disha Swarajyachi. So, how did you come up with this title, Disha Swarajyachi? It's based on Menda Gaon, right? So, why not Menda? Why the title Disha Swarajyachi? Yeah, so basically, this particular documentary is about a very innovative experiment that is done by the village Mendalekha. Mendalekha is a very small village in the interiors of Vidarbha. So it's in Gadchiroli district, and basically it's a tribal village. Hardly the population will be around 400, 450. But that village, those villagers have done a wonderful experiment, and that is going on for last 2 to 3 decades, maybe more than 25 years. What they have done is basically they work with the, they call it Sarva Sahamati. So unanimous decision is taken by the villagers about implementing any kind of project or any kind of the work they want to do in the village. एंड वो सर्वसहमति करने के बाद वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं एंड विथ दैट दे हैव अचीव्ड इट्स आई कैन से दैट इट्स अ फर्स्ट विलेज इन इंडिया विच एक्वायर्ड द फॉरेस्ट राइट्स, क्योंकि उनका जो जीना है ना वो फॉरेस्ट पे दे आर मोर डिपेंडेंट दैन द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट उनके हाथ में नहीं था बिकॉज फॉरेस्ट वॉज बेसिकली it was a assumption that it is completely owned by the forest department. So the villagers were not getting the rights to get anything from the forest produce. तो उसके बारे में एक बहुत लंबा एक 2-3 decades का एक उनका स्ट्रगल चला एंड फाइनली दे एक्वायर्ड द फॉरेस्ट राइट्स. तो इस तरह से वो काम करते हैं. नाउ the idea behind making this documentary is to spread the message with which they are working. तो एक तरह से हम उसको participatory democracy बोल सकते हैं. Basically they have a slogan कुछ इस तरह से है कि मुंबई दिल्लीत आमचं सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार. So इसका मतलब है कि दिल्ली और मुंबई में हमारी सरकार है, हमने जो इलेक्ट करके दी है, लेकिन हमारे गांव में हम खुद ही सरकार है, मतलब वी आर सेल्फ गवर्न द थिंग. तो ये जो फिलोसफी है, तो उनका काम देख के बाकी लोग इंस्पायर होते गए और ऐसे ही बाकी भी अभी कुछ विलेजेस हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं. एंड यही मैसेज हमको लोगों तक पहुंचाना है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट it's a very important step towards self governance, and that's why the title is towards self governance या फिर दिशा स्वराज्याची. इंग्लिश में उसको हम टाइटल हमने दिया है towards self governance. नाइस. इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव आप लोग ने जो लिया है टू स्प्रेड दिस मैसेज, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट हमारे जनरेशन को ये मैसेज लाइक बहुत देर तक पहुंचता है. ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचता है, बट बहुत देर तक पहुंचता है. This has happened in 2012, right? जो उनको forest rights जब मिला था. Correct. So I personally came to know about this in 2024. So it was like 12 साल का गैप है. So देखा जाए तो like छोटे गांव का जो मैसेज है वो आप लोग ही पहुंचा रहे हो हम तक. To be honest, आप लोग ही पहुंचा रहे हो.
So that's a very big thing जो आप लोग कर रहे हो, and I really appreciate you for that. Thank you. So moving on to the next question, it's like I believe personally, it's like making a documentary is going through a lot of lies and lot of facts in order to find the truth. So आपने जो facts पढ़े थे मेंढा के बारे में 2012 के पहले, right, I guess, तो what was your journey from the facts till the truth? अच्छा, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइज मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लॉट ऑफ लाइज? Lies as in partial truths. हम लोग ऐसा बहुत टाइम होता है करके, like just for an example, गोवा जाना है, गोवा is like fun life, but when you go there off season जाएंगे तो it's like कुछ है नहीं इधर. So that's the thing. नो आई कैन अंडरस्टैंड. आई मीन थोड़ा सा मैं करेक्शन यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जैसे हम ये मैसेज लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द सिमिलर लाइंस, और हमसे भी पहले और ज़्यादा एफर्ट्स लिए गए थे थ्रू द बुक. एक्चुअली ये बुक से ये मैसेज पहुंचाने का काम मिलिंद बोकिल राइटर है. ही रोट अ बुक अबाउट दिस एंटायर एक्सपेरिमेंटेशन, एंड दैट हैपेंड इन आई एम नॉट श्योर बट 2013-14 में वो कुछ बुक आया है एंड वो पब्लिश हो गया, एंड दैट इज़ इन मराठी. एंड उसमें ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में लिखा है. सो आई केम टू नो अबाउट दिस एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू द बुक ऑफ मिलिंद बोकिल. एंड अब बुक में क्या है ना कि बेसिकली क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना इनोवेटिव है कि हम बोलते हैं ना कि मतलब अब 4 लोग, जैसे कि गोवा जाने की बात हो रही थी ना, तो 4 लोग गोवा जा रहे हैं सपोज, 4 दोस्त, तो भी उसमें ना डे 1 में क्या करना है, तो कोई बोलता है कि नहीं हम यहाँ पे जाएंगे, ये बीच पे जाएंगे, कोई बोलता है कि नहीं हम वो इसमें बोट में सैर करेंगे, कोई बोलता है. सो अलग अलग ओपिनियंस आती है. तो एक ओपिनियन पे आना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. अब ये 4 दोस्तों में डिफिकल्ट है तो पूरे विलेज में कितना डिफिकल्ट होगा. सो जब ये बुक के बारे में, बुक से मैंने ये विलेज के बारे में पढ़ा, तो पहला क्वेश्चन तो मन में यही आता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब पूरा गांव एक ओपिनियन पे कैसे आ सकता है, या फिर एक सर्व सहमति पे कैसे आ सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो जब हम गांव में गए, सो आपने बोला कि लाइज तो नहीं है, बट ये जो फैक्ट है वो फैक्ट भी हमको चेक करना पड़ेगा ना. सो डॉक्यूमेंट्रीज में हमेशा ये होता है कि वॉट एवर यू रीड, सो बेसिकली यू आर डूइंग अ रिसर्च एट द पॉइंट ऑफ रिसर्च यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो कोई ये देता है, कोई वो देता है. अब उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी भी चीज़ें आ जाती है. कोई बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं है, वो ऐसे बोलता है कि ऐसे नहीं है, वगैरह वगैरह. तो बुक से हमको कुछ रेफरेंसेस तो मिल गई थी, लेकिन उस पर क्वेश्चंस थे. क्वेश्चंस ज़रूर थे, लाइज तो नहीं थी, लेकिन क्वेश्चंस ज़रूर थे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो एक्चुअली वो वहाँ पे जाने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद ही हमको धीरे धीरे समझ में आ गया कि इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब हमको जो लगता है ना कि सर्वसहमति मतलब पूरा गांव एक ओपिनियन पे ऐसे आ जाएगा, मतलब मे बी आफ्टर अ डिस्कशन आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है. एंड दिस इज द बेसिक assumption दैट वी डू, एंड देयर वी आर रॉन्ग एक्चुअली. तो जैसे कि गांव के लोग भी बोलते हैं, एंड वी ट्राई टू कवर दैट पॉइंट इन द फिल्म इटसेल्फ, कि ये कैसे अचीव होता है, सर्वसहमति कैसे होती है. तो सर्वसहमति ऐसे ही मैजिकली नहीं होती है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है. कैसे कोशिश करेंगे, तो बेसिकली दे से कि सर्वसहमति सिर्फ गांव एक साथ आके सर्वसहमति के लिए काम करने के लिए तैयार हो, ये पहला आपका रिक्वायरमेंट है. ऑफ कोर्स हाँ, एवरीबॉडी शुड बी रेडी कि हाँ हम इस तरह से काम करें, ये पहला रिक्वायरमेंट. दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, पहला भी उतना ही है, लेकिन दूसरा और भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि यू शुड कीप डूइंग द स्टडी कंटिन्यूसली. तो स्टडी के सिवाय ये होगा नहीं. अब आप बोलेंगे विलेजर्स है, स्टडी कैसे करेंगे, लेकिन वो स्टडी करते हैं. स्टडी मतलब ऐसे पेपर पेन लेके बैठते नहीं है, बट दे कीप ऑन डिस्कसिंग द सब्जेक्ट. कि अगर गांव में सपोज एक कुआं खोदना है, तो ये इसके ज़मीन में कुआं खोदना है क्या, तो फिर वो उस पर चर्चा उस पर होते रहती है.
और वो कभी कभी 6 महीने, कभी कभी 8 महीने, कभी कभी 1 साल, कभी कभी 2 साल, जब तक सारे लोग एक मत पे नहीं आते, एक सहमति पे नहीं आते हैं, तब तक वो चर्चा चलती रही. एक व्यक्तीचा सुद्धा खरं असू शकतो आणि 100 लोक असले तरी त्यांचा खोटं असू शकतो. सो स्टडी विल गो ऑन. तो स्टडी में क्या निकलेगा कि बोलता है कि नहीं नहीं ये वेल का मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं वो ऐसे ऐसे मुझे बहुत लंबा पड़ेगा. अच्छा, तो सबको कन्वीनियंट हो ऐसी जगह ढूंढे, तो आप तैयार है क्या? हाँ, तो मैं तैयार हूँ. तो फिर अल्टरनेटिव लोकेशंस क्या है, फिर हम यहाँ पे बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर उनको वो तैयार है क्या, ये तैयार है क्या, ये तैयार है क्या, ये तैयार. तो पहले तो मोहल्ला मोहल्ला में वो चेक करते हैं कि इफ एवरीवन इज रेडी. तो मोहल्ला से आगे चल के आगे पहुंचता है मैसेज कि हमारे मोहल्ला में सब रेडी है, उनके मोहल्ला में भी रेडी है, उनके मोहल्ला में भी रेडी है. देन दे गो टू द ग्राम सभा, कि पूरा जो विलेज जहाँ पे बैठ के डिसीजन लेता है, वहाँ तक बात तब पहुँचती है जब द स्टडी इज ऑलरेडी डन इन ईच मोहल्ला एंड यूनानिमस डिसीजन इज एक्चुअली यूनानिमिटी इज अचीव्ड इन ईच मोहल्ला, तभी वो ग्राम सभा में जाता है. तो इट्स लाइक तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि एज अ डॉक्यूमेंट्री मेकर ये प्रोसेस समझ लेना वाज अ चैलेंज. क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हमने इतना इनोवेटिव कुछ सुना तो हमको लगता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, एंड ये हुआ था. ये आगे हम बात करेंगे, बट ये 2 फेज में हमने ये उसका शूटिंग किया था ना. तो पहले फेज में देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे हम डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं ना. सो देयर वर सम पीपल की डेविल्स एडवोकेसी करने वाले कि नहीं नहीं ये कुछ भी बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, लेकिन ऐसे सर्वसहमति वगैरह कुछ अचीव नहीं होता होगा, वो जाके देखते हैं हम. सो ये भी हो सकता है एटीट्यूड. तो आपको ना वहाँ पे उनके साथ जाके बात करके वो समझ लेना पड़ेगा कि डू दे रियली अचीव, देन हाउ दे अचीव. एंड काम तो दिख रहा है, मतलब 25 साल में इतनी सारी चीज़ें हुई है वहाँ पे. एंड व्हेन यू कीप ऑन टॉकिंग टू ईच एंड एवरीवन, तो आपको पता तो है कि एवरीबडी इज रेडी फॉर दैट. तो वो कैसे अचीव करते हैं वो देखने लायक चीज़ है. Do we still know who has actually initiated this? Like कोई एक बंदा है या सब सभा में बात ही हुआ when they सब एक साथ बैठ के जब बात कर रहे तभी डिस्कशन का टॉपिक निकला था? इसके ना कई सारे लेयर्स है. Okay. एक लेयर ये है बेसिकली कि जो कि डॉक्यूमेंट्री में उतना ज़्यादा हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो ये है कि lot of tribes have this kind of a practice to work with a unanimous decision. बहुत सारे ट्राइब्स में है, अभी भी है कि पूरा ट्राइब मिलके ही डिसाइड करता है क्या करता है, क्या करना है. बट उसमें और इसमें फर्क है. ट्राइब में क्या होता है, कई बार एक मुखिया होता है एंड फिर मतलब कोई ना नहीं बोलता है, बट दे say yes because of a kind of a commanding position that leader is having. अंदर ही अंदर ना बोलना रहता उनको, लेकिन वो बोलते नहीं है. तो उसमें और इसमें फर्क है. तो ये गांव भी पहले से इस तरह से काम करता था with unanimous decision, लेकिन वो because of the practice of tribe वो चलता आ रहा था. So there is a great social worker who is attached with this village. उनका नाम है मोहन हीराबाई हीरालाल. स्वराज यानी आज़ादी का हर व्यक्ति के लिए ये उसका मतलब होगा कि मेरा निर्णय मैं ले सकूं, जो मुझसे संबंधित है, वो मेरी आज़ादी है, वो मेरा स्वराज है. और वो निर्णय लेते वक्त मैं गलती भी कर सकूं, लेकिन जिसके परिणाम सिर्फ मुझे भुगतने हैं और दूसरे को नहीं, उतनी ही आज़ादी निर्णय लेने की मुझे है. तो मेरा निर्णय मैं लूँगा, तो फिर जो पास रहने वाले लोगों का, हमारा जो गांव है या मोहल्ला है, उसका निर्णय कौन लेगा? तो उसकी आज़ादी की बात हम लोग करते हैं. तो जैसे मेरा निर्णय मैं लूँगा, तो हमारे गांव का या हमारे मोहल्ले का निर्णय हम सभी मिलकर लेना चाहिए. तो हम सभी मिलकर लेंगे
ऐसा अगर हम लोग तय करते हैं तो आज जो बहुमत से निर्णय ले रहे हैं क्या वो सही होगा? उसमें अल्पमत को हम लोग दबा देते हैं, उसको जगह ही नहीं रखते, तो फिर सबका निर्णय हुआ ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो ये हीराबाई हीरालाल मतलब उनका फादर एंड मदर का नाम वो यूज़ करते हैं, ही डोंट रियली यूज हिज सरनेम। तो मोहन भाऊ जो है, मोहन भाऊ ने ऐसे डिसाइड किया कि हम किसी गांव के साथ इस तरह से काम हम शुरू करेंगे, विच एंटायर स्टोरी इज देयर इन द डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो, कि ही डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग। बट उनका काम करने का तरीका ऐसे है कि उन्होंने सीधा बोल दिया गांव को कि देखो मैं कुछ ऐसा फंड्स लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं ना आपको जॉब दूंगा, ना मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ना मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, ना मैं मुझे आपके साथ काम करना है। इसका मतलब है सिर्फ काम करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड उसमें मेन एजम्पशन ये है कि सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना है, सॉल्यूशन मैं नहीं देने वाला। ऐसे मत समझना कि मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, तो सॉल्यूशन आपको ही ढूंढना है, आपको ही इम्प्लीमेंट करना है। So he started working with them because he actually tried approaching lot of villages. उनका एक ही शर्त था कि जो गांव ऐसे बोलता है कि जो हम सर्वसहमति से काम करते हैं उनके साथ ही मैं काम करूंगा। हाँ, तो ऐसे 22 गांवों ने उनको अप्रोच किया था कि वी आर रेडी। बट उसमें से उन्होंने एक गांव सिलेक्ट किया कि जहाँ पे उनको ऐसे लगता था कि फेवरेबल कंडीशंस है काम करने के लिए। एंड सो ही स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर। बट शुरुआत में ही उनको पता चल गया कि जिसको वो सर्वसहमति बोल रहे हैं वो है, लेकिन ग्राम सभा में जो सर्वसहमति होती है वहाँ पे सिर्फ मेल्स है, फीमेल्स आर नॉट प्रेजेंट, एंड दे वेर नॉट इवन कंसिडरिंग कि सर्वसहमति, उनको लग रहा था सब पुरुष आ गए मतलब सर्वसहमति हो गई, स्त्री नहीं आ रही है, लेकिन उनको भी सर्वसहमति में कंसिडर करना चाहिए, ये ही उनके ध्यान में नहीं था। सो देन द एंटायर क्वेश्चन वाज रेज्ड कि वेदर द एंटायर विलेज इज रियली डूइंग सर्वसहमति और नॉट। एंड देन तो वीमेन को इसमें इंक्लूड करना, फिर से वो प्रोसेस चली कि आर वी रेडी टू इंक्लूड ऑल द वीमेन इन द प्रोसेस। फिर वापस चर्चा, फिर वहां पे वीमेन ने एक सीधा शर्त रख दी, वी विल कम बट वी हैव आवर टर्म्स। वो टर्म ये है कि द लीकर शुड नॉट बी अलाउड इन द ग्राम सभा, क्योंकि वो दारू पी के आते थे, चर्चा करते थे, तो उन्होंने बोला कि देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन अबाउट द लीकर, कॉन्शियस डिसीजन नहीं बनता। हाँ, हाँ, तो ये रखा। तो मतलब अगर वीमेन को लाना है तो दारू बंदी करनी पड़ेगी। तो फिर से वो चला, एंड दैट टुक ऑलमोस्ट 1.5 year, that discussion in the village to restrict the liquor. एंड ऐसा बोलते हुए ना, कॉन्शियस डिसीजंस वुमेन्स ज़्यादा अच्छे से लेते हैं अपने से। करेक्ट। बट इट इज़ अ, मतलब देखा जाए तो इट्स अ वेरी मैच्योर थिंकिंग जो उनमें है अभी भी, उसकी वजह से ये डिसीजन लेने के स्टेज पे आ चुके हैं वो लोग। बिकॉज कैसा होता है, लाइक जितना आई नो अबाउट ट्राइब्स इज लाइक एक स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड है अभी भी अपना उन पे, एज अ यू नो अर्बनाइजेशन में जो पले बड़े हैं करके, लाइक ऐसा लगता है करके वो लोग बैकवर्ड क्लास है, उनका छोटी सोच है। बट देखा जाए तो ये अपना छोटा सोच है, हम लोग को ये सोच से बाहर निकलना है। बिकॉज ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से थोड़ा एक्सप्लोर होते हैं हम लोग, उनका वे ऑफ लिविंग कैसा है, मेंटालिटी कैसा है। करेक्ट। सो it's a very good thing to see something like this. So talking about the documentary shooting process, how big was your crew and like क्या अड़चनें आई shoot करने के time? Okay, so basically when I make these kind of documentaries, तो अभी I'm in this field of making the documentaries for last more than almost 25 years. सो मेरा क्रू हमेशा छोटा होता है, एंड इस प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत छोटा क्रू था। द रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि एक तो इंटीरियर में जाके शूट करना था,
बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, बिकॉज वी वर गेटिंग द फंड्स बट वो फंड्स भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे इन अ वे। एंड तो बहुत छोटा क्रू रखा जो कि गढ़चिरौली जाना है, गढ़चिरौली के इंटीरियर में जाना है, तो एक ही गाड़ी लेके उसमें जितना क्रू फिट हो सकता है उतने में ही हमने काम चला लिया। एंड ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए उतना क्रू भी इनफ होता है एक्चुअली। वी वर 5-6 पीपल एंड सो छोटे क्रू के साथ काम करना, ये हमेशा डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि यू वांट टू कैप्चर द कैंडिडिटी, जितना भी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना है पूरे विलेज को, या फिर कोई सिचुएशन का आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो 5-6 लोगों का क्रू है तो बहुत अच्छा होता है, सो दैट यू वोंट डिस्टर्ब द एंटायर थिंग। तो वो भी अचीव हुआ। अड़चने तो बहुत आई, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बेसिकली वी वर शूटिंग विथ some basically the DSLRs. Okay. We were not having high budget, so we were not carrying big equipment and cinema line cameras. तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम था कि we were shooting in the month of March and गढ़चिरौली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो हीट बहुत होती है। सगळं पूर्ण रेकॉर्ड ना झालं। So our equipments were heating up. Okay. तो पहले ही दिन हमारा एक कैमरा बंद पड़ गया। सो 2 कैमरास थे, उसमें से एक कैमरा बंद पड़ गया। तो फिर वी वेर कॉन्टैक्टिंग द रेंटिंग गाय ओवर हियर, द वेंडर्स, कि इसमें क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। सो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यू थिंग्स कि लाइक हमको ज़्यादा टाइम तक रोल करना है, तो वी कैरिड वी माउंट बैटरीज एंड ऑल। तो ऐसे हमने जो सॉल्यूशंस रेडी रखे थे, लेकिन ये और भी कुछ हो गया कि द बैटरीज, फ्यू बैटरीज वेर नॉट रियली गिविंग द गुड रिजल्ट्स, तो उनको अवॉइड करना पड़ा। एंड उसकी वजह से पहला एक कैमरा बंद पड़ गया था। बाद में हीटिंग अप इशू की वजह से वी वेर शूटिंग अ लॉट, एक्चुअली वी वेर शूटिंग लॉन्ग इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज चल रहे थे, तो एक बार शुरू होता था इंटरव्यू तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटे का इंटरव्यू हम शूट करते थे। तो उसमें हीटिंग के इश्यूज बहुत आ रहे थे, बिकॉज कड़ी धूप में हम शूट कर रहे थे। तो दो वी वर इन द थोड़ा सा शैडो एरिया में जो भी इक्विपमेंट रखे गए थे, फिर भी टेम्परेचर बहुत था। तो वो एक दूसरा इशू था। द थर्ड थिंग वाज लाइक वी एक्चुअली, ये मैं टेक्निकल से थोड़ा सा इसमें जाता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करते वक्त, बिकॉज जनरली क्या होता है ना कि whenever you are making a documentary, आपके सामने चीज़ें हैं कि मतलब अभी देखो कि एक विलेज है, तो विलेज बोलता है कि ये विलेज ने बहुत बेटरमेंट के लिए बहुत काम किया है। तो क्या काम किया है, फिर वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाया है, फिर ये बनवाया है, हमने ये इंफ्रा प्रोवाइड किया है, वो। तो विजुअल एलिमेंट्स बहुत है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे दिखाने के लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल फिलोसॉफी। द विलेजर्स आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। ये जो चीज़ है वो दिखाना और वो उसमें से बाहर निकालना विजुअल लैंग्वेज से वाज अ टास्क। क्योंकि ये फिलोसॉफी है ना, जो कि तो सिर्फ इंटरव्यू पे तो काम चलेगा नहीं, बिकॉज इट विल नॉट एंगेज द ऑडियंस। तो मेन ये था कि ये फिलोसॉफिकल चीज लोगों तक उतने अट्रैक्टिव तरीके से कैसे पहुंचाई जा सकती है, एंड उसको विजुअल लैंग्वेज को उसमें कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। So that was the task. Okay. So we were figuring out, and throughout the making process, post maybe. So basically, we were trying to bring the entire narrative in such a way कि वो engaging भी लगे, ये भी पहुँचे, मैसेज भी पहुँचे, और मतलब visually भी story telling उसमें हो। So ये तीनों का संगम करना was a challenge. So moving on to our next question. सर, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज एडिट किए हैं, सो वाज एडिटिंग दिस डॉक्यूमेंट्री एन इजी टास्क फॉर यू? नॉट एट ऑल। सो एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट्री में या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री में, आई जनरली थिंक दैट एडिटिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री का जो नैरेटिव बिल्ड होता है वो एडिट टेबल पे शेप लेता है, एंड वो स्लोली शेप लेते हुए जाता है। एंड ये आई रियलाइज्ड दिस
while I was editing any documentary. तो दिशा स्वराज जी के बारे में भी ऐसे ही हुआ. एक्चुअली एक कुछ स्केलेटन था मेरे मन में, एंड विद दैट स्केलेटन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. तो शूट भी उसी एंगल से किया था. मतलब बेसिकली आई वॉज नॉट हैविंग एन आइडिया कि मुझे कुछ शायद नरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू अवॉइड द नरेशन, थर्ड पर्सन नरेशन, टू डिस्क्राइब और टू टेल द स्टोरी. तो उसका एक पहला जो कट बना, आई ट्राई टू डू दैट विथ माई ओरिजिनल स्केलेटन, बट इट वॉज टू लॉन्ग. मतलब ऑलमोस्ट इट वॉज 1 घंटा कुछ 15 या 20 मिनट तक गया होगा. एंड सो आई वॉज रियली वरीड कि उसमें ना, मतलब उसमें कट डाउन करेंगे तो नैरेटिव उसका निकल जा रहा था. सो नैरेटिव टू ब्रिंग इन दैट नैरेटिव वो लंबा रखना पड़ रहा था, एंड इट वॉज गोइंग ऑन फॉर 80 मिनट. दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी बोला कि द फिल्म इज अबाउट द फिलोसॉफी विथ विच दे वर्क. दिखाने की चीज़ नहीं है ज़्यादा, बताने की ज़्यादा है एक्चुअली. सो एंड उन्होंने जो किया है, सो दैट इंस्पायरिंग, उनका जो पूरा स्पिरिट है, विद द स्पिरिट दे वर्क, तो वो बाहर लाना वाज अ मेन मोटो. तो ये करते वक्त ऐसे हो रहा था कि द फिल्म इज बिकमिंग लिटिल लॉन्गर, एंड फिर भी वो इफेक्टिव भी नहीं लग रही थी. तो इफेक्टिवनेस उसका कम लग रहा था. सो आई वेंट ऑन विथ लॉट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि उनको दिखाया कि फिल्म मेकिंग के फ्रेंड्स थे, कुछ मतलब कुछ फिल्म मेकिंग के बाहर के भी थे जो कि थोड़े बहुत सोशल इश्यूज जिनको मालूम है, या फिर जो ऐसे बाकी एरियाज में काम करते हैं लेकिन दे हैव अ सेंसिटिव बेंड टुवर्ड्स सोशल इश्यूज. तो उनको दिखाया, एंड आई ट्राई टू गेट द फीडबैक. तो फीडबैक में ये आया कि मतलब कि ऑफ कोर्स ये थोड़ा छोटा हो सकता है. कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मैं तो मतलब आई एम हैप्पी टू सी एंटायर फिल्म 80 मिनट का है, तो और भी थोड़ा लंबा होता तो भी प्रॉब्लम नहीं, वगैरह वगैरह. तो ऐसे भी फीडबैक आए. लेकिन एक एक्चुअली क्या होता है ना, फीडबैक में ना हम एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं. सो खुद को ही वो उनके नज़र से देखते हैं ना फिल्म को हम, उनके साथ में. तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, एंड सो आई वर्कड अगेन ऑन दैट टू मेक द अनदर वर्जन ऑफ दिस फिल्म. तो तब जो सेकंड कट बना, तब मुझे जाके थोड़ा सा ठीक लगा, बिकॉज द सजेशन केम कि नरेशन क्यों नहीं है. तो मैंने बोला कि नरेशन, आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड द नरेशन, क्योंकि फिर ये कोई तीसरा क्यों बोले उनके बारे में. सो एक्चुअली जो अटेम्प्ट था कि नरेशन कम रखना है, तो उसको भी मैंने वहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. और दूसरी जगह से नरेशन चाहिए वो भी था, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की. तो एक बैलेंस निकाला. तो बैलेंस ये था कि एकदम कम एंड सिर्फ जॉइनिंग द डॉट्स के लिए, मतलब जहाँ पे भी ज़रूरत है ज्वाइन करने के लिए वहीं पे सिर्फ नरेशन लेके आए. एंड सो दैट सम पार्ट ऑफ द इंटरव्यू विल बी कट डाउन. एंड क्योंकि कुछ चीज़ें बोलने के लिए इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम लगता है, बट इन नरेशन यू कैन ब्रिंग इन दोज इन इफेक्टिव वर्ड्स. तो इस तरह से सो जो 80 मिनट था वहाँ से 53 मिनट पे आ गया. एंड इट बिकेम मोर इफेक्टिव ऑल्सो, मोर एंगेजिंग ऑल्सो. एंड सो इट वॉज अ चैलेंज, एक पूरा जर्नी था. एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो. मैंने उसको टाइम भी दिया. एक्चुअली वो टाइम देना भी ज़रूरी होता है कि आजकल क्या होता है ना कि एक थोड़ा मतलब डेडलाइन का प्रेशर होता है, ये करना है हमको, मतलब सबमिट करना है फिल्म. तो ऐसे भी प्रेशर कुछ नहीं था. इवन द फंडिंग एजेंसी वाज नॉट प्रेशराइजिंग मी. उन्होंने बोला कि आप यू टेक योर टाइम एंड आप पूरी तरह से आपको जैसे लगता है उस पर काम करो. तो सो आराम से काम करके उसको इस शेप में लाया गया. My next question to you is like the films which are documentary films which are made in India, they are either very subtle or very controversial. So what is your take on that? What are your opinions on this? So in my opinion, documentary films have that much of potential
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब कोई बनाता है, सो देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर. सो हर एक फिल्म मेकर का, हर एक डॉक्यूमेंट्री मेकर का अपना स्टाइल है, या फिर द इश्यूज दे वांट टू रेज थ्रू दैट, दे आर हैविंग देयर ओन way to deal with the issue. And so maybe you are referring to some of the documentary makers, like we can say like Anand Patwardhan these days. His films are controversial in some manner, but he is very bold to make his own statements, and I think he is exploiting the complete potential of the documentary genre. So वो है ही ताकत डॉक्यूमेंट्रीज़ की. एंड सो ऐसे अगर कोई डॉक्यूमेंट्री मेकर ऐसी स्टेटमेंट्स कर रहा है, तो दैट इज़ आई मीन दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल, बिकॉज ही इज़ यूजिंग द मीडियम टू मेक हिज स्टेटमेंट्स. सो वैसे ही मतलब इफ़ वी स्टार्ट लुकिंग एट ऑल द डॉक्यूमेंट्री मेकर्स इन इंडिया और अब्रॉड ऑल्सो, इंडिया का अगर एग्जांपल लेते हैं तो documentary maker like Sukhdev. So his documentaries are having a different flavor. मतलब जब 50s में documentaries में बहुत कुछ experiments हो रहे थे, so that time he actually used the medium in a right way to I mean in a way in a way portray India or the flavor of India in a particular manner. जैसे इंडिया 67 जैसी फिल्म है, या फिर बांग्लादेश फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी जो डॉक्यूमेंट्री है. सो देयर इज़ नथिंग दैट वे कंट्रोवर्शियल इन इंडिया इफ़ वी स्पीक. तो उसमें कंट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं है, बट ही एक्चुअली रीच टू द वॉर फ्रंट, एंड वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी, ही कवर्ड ऑल दोज थिंग्स. सो ऐसी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ है, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्रीज़. वैसे मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अगर हम देखते तो कमल स्वरूप जैसे डॉक्यूमेंट्री मेकर्स है, हु एक्चुअली हैड अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ ऑब्जर्वेशनल डॉक्यूमेंट्रीज, एंड बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वो यूज़ किया है. सो इफ़ वी लुक एट द development in documentaries, or if we look at the entire range of documentaries made in India or abroad, so मुझे लगता है कि उसमें possibilities बहुत सारी है. जैसे the film medium itself is having a lot of range. तो अगर हम फिक्शन फिल्म की भी अगर बात करते हैं, तो we can see that there are filmmakers who are making a very commercial kind of movies. दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि जो इंडियन पैरेलल फिल्म मूवमेंट आई, उसमें से कुछ सीरियस इश्यूज रेज करने वाले फिल्म मेकर्स ने फिल्म्स बनाई. सो वैसे ही डॉक्यूमेंट्रीज में भी बहुत सारी रेंज है, और अलग अलग फिल्म मेकर्स अपनी तरीके से वो मीडियम का यूज़ कर रहे हैं. वैसे ही देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हु आर मेकिंग द डेवलपमेंटल डॉक्यूमेंट्रीज, जो कि डेवलपमेंट के बारे में बता रही है, या फिर देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज विच वेर मेड बाय films division, which were completely informatory or sometimes propaganda making documentaries were there. So ये एक पूरी range है, and I'm really happy that various filmmakers are using that potential of documentary films, and वो चाहे इंडिया में हो या बाहर हो. So मुझे दिखता है कि एक ही तरह की नहीं डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, अलग अलग प्रकार की बन रही है, and that's a very good sign actually. One last thing I would want to ask you is like, what advice would you give to a young lad or young chap, who is just picked up his camera and he wants to shoot a documentary? So, in my opinion, now the entire medium is changing, and even the ways we can exhibit our films, they are also changing. तो documentaries में या फिर फिल्म मेकिंग में पहले जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि फिल्म का यूज़ होता था, या फिर इवन द वीडियो टेप्स वेयर बीइंग यूज्ड, अभी उसके बाद हम डिजिटल पे आ गए हैं. सो नाउ द मीडियम इज़ वेरी मच एक्सेसिबल टू लॉट ऑफ पीपल. सेकेंडली, हमारे पास अभी ये भी है कि वी कैन एग्जिबिट दोज फिल्म्स, मे बी सम प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब पे हम अपलोड कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं. So all this technology is very much accessible for a common person.
So now what is important is if someone wants to make a documentary about a particular issue or a topic or a subject, तो डॉक्यूमेंट्री के बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है, बिकॉज इन द एज ऑफ रील्स एंड मेकिंग द वीडियोज़, लोग वीडियोज़ को ही डॉक्यूमेंट्री समझ रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री को वीडियो के जैसे ट्रीट कर रहे हैं. सो अ सीरियस थॉट प्रोसेस should be given by the maker that we are making a documentary. So documentary में ये होता है कि we are actually portraying a particular topic in a particular way. Maybe कोई poetic तरीके से उसको दिखाना चाहता है या फिर कोई observational तरीके से दिखाना चाहता है. But in आप कोई भी स्टाइल पिकअप करो या कोई भी टाइप आप पिकअप करो, दैट इज़ योर ओन कॉल, बट उसको डॉक्यूमेंट्री की तरह ट्रीट करना ज़रूरी है. So making a video is not making a documentary. The documentary is basically, in my opinion, should have a complete storytelling structure. In a way, storytelling structure का मतलब है कि एक complete statement वो तैयार कर देता है. चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, सब्जेक्ट पे हो, वो डीपर जाती है, कहीं पे वो टच करती है ऑडियंस को, आइदर इंटेलेक्चुअली और इमोशनली या फिर दोनों जगह पे वो टच करती है. सो वो सिर्फ रील्स और वीडियो से एक अलग फॉर्मेट है जिसको एक कंप्लीट फिल्म का स्ट्रक्चर है. सो उस तरह से उसको देखना चाहिए. सो nowadays we are having all this technology and everything. What is important now is to gain the knowledge. The youngsters should, if they are interested in making documentaries, then they should watch some good documentaries which are being made, which are made in the olden times. तो उसको देख के स्टडी करके फिर हमारा जो टॉपिक है उसका स्टडी करके, बिकॉज विदाउट रिसर्च डॉक्यूमेंट्री कांट बी मेड. एंड आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लोर दैट टॉपिक इन अ ब्रॉडर वे. कि मतलब उसके एक्सपर्ट्स कौन हैं, उसके बारे में क्या बुक्स पब्लिश हुई है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ग्रास रूट लेवल पे उसके बारे में क्या चीज़ें हो रही है. इन सारी चीज़ों का एक ग्राफ लेके उसको हमारे फिल्म में इम्प्लीमेंट करना is in my opinion would be a great thing to do. Thank you so much, sir, for being on this show. I was truly inspired by you, and I hope a lot of viewers would have also been inspired by watching this show. Thank you so much, sir. Thank you very much, and it's my pleasure to be on the show. And I would like to appeal to the audience also that with the help of this show, more and more audience will get connected with the world of documentaries. They will really start taking interest in watching the documentaries, and I hope that the world of documentaries will be coming closer to more and more audience. So yeah, thank you very much. That's the true goal of our show, True Tale Cinema. Yeah. That is the only goal which we are trying to focus right now, is to spread more and more documentaries. It is a part of cinema, and I hope you will start watching documentaries.